ठीक है. Then yesterday we started with section 56 subsection 3 which spoke about transfer of partly paid up shares. ठीक है. Now in such cases as I told you, ध्यान से सुनो, in case यहाँ पे most of the times the transferer would want to submit. Now who can submit the transfer? First of all tell me which form is the transfer deed. SH1 क्या था? शेयर सर्टिफिकेट. SH4 क्या है? शेयर ट्रांसफर डीड. बराबर, वो फॉर्मेट दिया हुआ है SH4 के अंदर. नाउ इन केस ऑफ अ पार्टली पेड अप शेयर, हु कैन सबमिट SH4, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी? हु कैन सबमिट? बोलो ना मुझे यार. एनी वन या बोथ? फर्क है क्या? फर्क है? बोथ बोला मतलब दोनों को करना पड़ेगा? नहीं भाई, दोनों में से कोई एक कर सकता है. ट्रांसफरर करे या ट्रांसफर करे. प्लीज लैंग्वेज एंड इंप्लीकेशन समझो. मुझे समझता है जब तुम बोथ बोलते हो तो मतलब यू आर मीनिंग एनी वन, बट दैट डजंट नेसेसरीली ट्रांसफर व्हेन यू आर राइटिंग. ट्रांसफर में तुम बोथ लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा बोथ मतलब ये बोल रहा है दोनों को सबमिट करना है, गलत दे देगा. It can be submitted either by the transferor or the transferee. Now, in case of a partly paid up share wala case, the submission will likely be by the transferor or transferee. Transferer, because वो बोल रहा है partly paid है, फटाफट जाने दो, let it go off my head. ठीक है. तो in case there is a transfer of a partly paid up share, are you understanding? The company will not directly accept or register the transfer. The company will accept or register the transfer only after sending a notice in SH5 to whom? Transferor ya re? Transferee. All right. Within it will submit or it will send a notice to the transferee. All right. And the transferee is supposed to reply to the company within how many days? Within how many days? 2 weeks. All right. And if 2 weeks lapse, matlab there is no response from the transferee, then वो deemed होगा कि there is no objection and the company will go ahead and register such transfer. Register such transfer matlab the company will transfer, company will record the name of the transferer या transferee? Transferee in the register of members, ROM के अंदर. ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो 56(3) ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स लिखो 56(3) ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स. सॉरी. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, टाइटल दिया. हाँ, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, दिस इज फास्टर. In case of transfer of partly paid up shares, the company, before registering such transfer, shall send a notice to the transferee intimating him regarding the nature of such shares. बराबर है? Full stop, leave a line. The transferee shall within 2 weeks, the transferee shall within 2 weeks of receipt of notice, the transferee shall within 2 weeks of receipt of notice, may reply to the company stating his no objection.
ठीक है. In case the transferee does not reply, 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 comma, there shall be deemed no objection, deemed NOC. All right. The company, leave full stop, फिर leave a line. The company after the receipt, the company after the receipt of reply, the company after the receipt of reply or after lapse of 2 weeks shall register the transfer within, shall register the transfer within 1 month, within 1 month. ठीक है, shall register the transfer within 1 month. ठीक है. 56(2) अपन ने पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिड वी डू ट्रांसमिशन? ट्रांसफर ही पढ़ा था, राइट? सो नाउ लेट्स गो ऑन और लेट्स स्टडी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ठीक है. तो बेटा ये देखो, 56(1) पढ़ लिया हमने. ऑल राइट, उसका प्रोवाइजो पढ़ लिया. नथिंग ऑन रिसीट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी राइट्स, ये हो गया अभी. हाँ, 56(2) बराबर है. 56(2) पढ़ा अपन ने? नहीं. 56(1) पढ़ा, 56(3) पढ़ा. ठीक है. व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन, like मैंने बोला था ना, when there are partly paid up shares the likelihood is always by the transferor. एक बार जो हमने लिखा है उसको एक बार रीड करके मैच कर लेते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा और जो लिखा है वो सही है या नहीं है. When an application is made by the transferor alone and it relates to partly paid shares, because अभी ना तुमको थोड़ा बेयर एक्ट पढ़ने का भी आदत होना चाहिए. All right. The transfer shall not be registered, मतलब the transfer shall be registered if company gives notice of the application as may be prescribed SH5 to the transferee and the transferee gives no objection within 2 weeks from the receipt of notice. बराबर है? Are you understanding? अगर 2 हफ्ते में उसने नहीं रिप्लाई किया तो हम मान लेंगे that there is no objection. सर आपने 1 month कहां से निकाला? ये एक बात है ना. हर जगह मैंने ऊपर भी बोला तुमको 1 month, यहां पर भी बोला मैंने 1 month, आएंगे उसके ऊपर भी. बेयर एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. ऑल राइट, नाउ आ जाओ 56(2). नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, nothing contained in subsection 1 shall prejudice the power of the company, मतलब shall affect the power of the company to register, all right, or receipt of an intimation of transmission, all right, shall affect the intimation of transmission of any right to securities by what? Operation of law from any person to whom such right has been transmitted. ठीक है. नथिंग कंटेन मतलब सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा है, जो भी SH4 के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा, जो भी प्रोसीजर पढ़ा, वो विल नॉट अफेक्ट सबसेक्शन 2, विल नॉट अफेक्ट व्हाट? ट्रांसमिशन. तो यहां पे हमको क्या समझना है? इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ. एवरीबडी क्या समझना है यहां पे? 2 चीजें, इंटीमेशन ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है. नाउ What do you mean by intimation of transmission? बेटा ये जो एग्जाम्पल हमने इधर देखा, ऑल राइट, कि राम था, राम मर गया. समझो राम के पास 1000 शेयर्स थे AMS लिमिटेड के, ऑल राइट.
राम को डेथ हो गई राम की, तो राम के पास कौन को जाएगा उसके बाद? श्याम। सीधी बात है। ऑल राइट, राम वॉज द फादर, श्याम वॉज द सन। समझ में आ रहा है बेटा? ऑल राइट, तो डेथ हो गया तो बाय डेथ इनहेरिटेंस में श्याम को आ जाएगा। ऑल राइट, एंड श्याम क्या करेगा? कंपनी को अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई करेगा फॉर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन, बिकॉज इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है? अब कैन राम अप्लाई टू द कंपनी? कैन राम अप्लाई टू द कंपनी? नो। तो 56(1) लग ही नहीं सकता। अब समझ में आ रहा है? 56(1) में जब दोनों पार्टी जिंदा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ट्रांसफरर में अप्लाई और ट्रांसफरी में अप्लाई। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे हमको समझ में ये आता है इंटरप्रिटेशन से कि 56(2) में कौन अप्लाई करेगा? ट्रांसफरी, बिकॉज द ट्रांसफरर इज इनकेपेबल। ऑल राइट, इनकेपेबल टू अप्लाई। ऑल राइट, एंड दूसरा क्या था? ऊपर वर्ड क्या यूज किया था 56(1) के अंदर? अप्लाई करेगा, बराबर है। ऑल राइट, द कंपनी में अप्लाई इन द शेयर डॉक्यूमेंट और सबमिट इट विद इन 60 days, सॉरी, शेयर डॉक्यूमेंट इन SH4, बराबर है। यहां पे हम क्या बोलते हैं? यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंटीमेशन। ऑल राइट, बिकॉज इज देयर अ ट्रांसफर डीड? ट्रांसफर डीड क्या होती है? सबमिट या इंटीमेट? ट्रांसफर डीड इज सबमिटेड। इंटीमेशन इज, यू नो व्हाट, इंफॉर्मेशन। आई एम इन्फॉर्मिंग यू, आई एम इंटीमेटिंग यू। ऑल राइट, तो इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर्मेट नहीं है। ऑल राइट, आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपने शायद डेथ सर्टिफिकेट अटैच किया कि भाई देखो ये है, इसका लीगल एयर मैं हूं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। कंपनी शायद आपसे और कुछ मांग सकती है, बट आपको कंपनी को आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म कर रहे हो that such a case, such a situation has happened. Please understand the finer details. वहां पे you are submitting an application in 56(1). In 56(2) you are not submitting an application. You are intimating to the company that Mr. Ram has passed away. I am his legal heir. I am supposed to receive these shares. All right. This is his death certificate. This is the other Aadhaar card या whatever. जैसे होता है ना हमारा एक documentation. And you will submit it to the company. कंपनी satisfy हो गई कि मिस्टर राम इज नो मोर, एंड कंपनी क्या कर देगी? वो शेयर्स को ट्रांसमिट कर देगी। समझ में आ रहा है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू नेक्स्ट इज 56(2) इज ओनली फॉर डेथ? और क्या हो सकता है? हाँ, कुछ बोला, क्या बोला? अनसाउंड माइंड, हाँ बराबर। इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंसॉल्वेंट हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया, बिकॉज यहां पे देखो डेथ इज वन क्लासिक एग्जांपल वेयर वी यूज फॉर ट्रांसमिशन। बट ये मत समझना कि खाली डेथ के लिए 56(2) होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो किसको जाएगा? उसके बेटे को जाएगा। स्टैचू। इंसॉल्वेंट होगा तो किसको जाएगा? गवर्नमेंट का कौन होता है बंदा? एक नाम होता है लिक्विडेटर का, और दूसरा वर्ड दमशराज खेल रहे क्या इधर? ऑफिशियल रिसीवर। कम ऑन यार, इन द केस ऑफ लिक्विडेशन गवर्नमेंट बराबर बोला, बट गवर्नमेंट का एक बंदा रहेगा ना यार, कौन रहेगा? ऑफिशियल रिसीवर। उसको ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? और उसको ट्रांसमिट करना है तो कुछ तो स्टैट्यूट या लॉ यूज करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना किसी के नाम पर भी ट्रांसमिट कर देंगे। 56(2) बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? तो वन इज डेथ, वन इज इंसॉल्वेंसी, वन इज अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड वाला बंदा है तो वो खुद तो अप्लाई नहीं कर सकता, खुद तो नहीं बोल सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो सम पर्सन कैन कम। अब सर उसमें क्या होगा? उसमें आप अटैच करोगे डॉक्टर्स रिपोर्ट, ये वो फलाना डिम का प्रूफ ऑफ ओनरशिप,
सर ये शेयर्स इनके हैं, अब हमको ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है? तो 56(2) में दो कीवर्ड्स क्या थे? नथिंग शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द रिसीट। क्या था एवरीबॉडी? फर्स्ट वाला इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड याद रखना यहां पे क्या है, मतलब सब कुछ। सिक्योरिटीज मतलब सब कुछ। अब ये सब में ज्यादा एक्स्ट्रा एम्फेसिस इसके लिए दे रहा हूं आफ्टर सीइंग द पेपर। ठीक है, क्योंकि होता है कभी बोला शेयर्स नहीं डिबेंचर्स, तुम सोचता रहेगा यार डिबेंचर्स था कि नहीं था। ऑलराइट, वैसे ही हालत होगा, क्या करूं क्या करूं, बराबर है? समझ में नहीं आ रहा है, गाने चल रहे होंगे दिमाग में फिर। इट इज सिक्योरिटीज। तो तीन चीजें तुमको याद रखनी है। देयर इज इंटीमेशन ऑफ, एवरीबॉडी, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, सेकेंड वर्ड सिक्योरिटीज, थर्ड वर्ड ऑपरेशन ऑफ लॉ। बस ये मिला के तुम लिख सकते हो। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply, all right, to the company's power to transmit the shares, all right, transmit the shares of any, not shares, transmission of securities by operation of law। तुम्हारे आंसर में ये दिखा, तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे पीछे तुम कैसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समवेयर यू हैव टू ट्राई एंड डेवलप दैट लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? 56(2) इजी था, खत्म हो गया। राइट डाउन 56(2). हाँ हाँ हाँ, वो तो नॉर्मल कंपनी का जो यूजुअल मोड ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। आजकल ईमेल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, यू कैन ईमेल देम पीडीएफ द डॉक्यूमेंट्स। राइट डाउन 56(2) ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। In case of transmission, in case of transmission of securities, अच्छा मैंने ऊपर शेयर्स बोल दिया क्या? हाँ, सिक्योरिटीज कर दो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सिक्योरिटीज। In case of transmission of securities, in case of transmission of securities, the transferee, कॉमा मतलब सिक्योरिटीज के बाद कॉमा, द ट्रांसफरी में अप्लाई या इंटीमेट लिखो, में इंटीमेट द कंपनी, में इंटीमेट द कंपनी टू ट्रांसमिट द शेयर्स, टू ट्रांसमिट द शेयर्स, सॉरी, ट्रांसमिट द सिक्योरिटीज, टू ट्रांसमिट द सिक्योरिटीज, टू ट्रांसमिट द सिक्योरिटीज by operation of law, transmit the securities by operation of law। operation of law में ब्रैकेट के अंदर आप लिख देना डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक स्टोरी सुनो मेरे से। एक थे मिस्टर अंडी, मिस्टर अंडी थे, अंडी मंडी शंडी वाले अंडी थे। अंडी, मिस्टर अंडी क्या करते थे, अपने शेयर्स ना साथ में लेके सोते थे, बगल में रख के। ठीक है, मेरे शेयर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं हो सकता, ये शेयर सर्टिफिकेट को कुछ होना नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ऑल राइट। एक दिन क्या हुआ, किसी ने वो शेयर सर्टिफिकेट हटा दिए बोल के कि क्या है यार, पागल आदमी है, शेयर सर्टिफिकेट के साथ सोता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सुबह उठे, शेयर सर्टिफिकेट नहीं था, तो हार्ट अटैक आ गया, चल दिया। ऑल राइट, अब जिसने हटाया उसको बुरा तो लगेगा ना। ऑल राइट, समझो बेटे ने हटाया होगा, अरे मेरे डैड इसके वजह से चले गए। समझ में आ रहा है? तो जब भी शेयर्स को देखेंगे, एक मिनट, जब भी शेयर्स को देखेंगे तो थोड़ा ट्रॉमा होगा, यादें आएगी, मैंने ही अपने डैड को मार डाला, है ना, काश वो शेयर्स में वहीं पड़े रहता तो आज मेरे डैड जिंदा रहते। बराबर है? अब ये शेयर्स पनौती शेयर्स हैं, मेरे को ये शेयर्स नहीं चाहिए। जब भी देखता हूँ मुझे पुरानी यादें और डैड की याद आती है, मुझे अब नहीं चाहिए। मुझे चाहता हूँ कि ये शेयर्स किसी को दे दूँ, बेच दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ। बराबर है? पॉसिबल है या नहीं है? ये तो एक एग्जैजुरेशन है, क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, अब आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो,
पहले शेयर्स मैं अपने नाम पे लूं, बराबर है, ट्रांसमिट करूं, फिर मैं उसको क्या करूं, ट्रांसफर करूं, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डायरेक्टली ट्रांसफर करने का क्या तुमको लगता है ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बट वो ट्रांसफर कैसे करेगा, क्योंकि वो तो ट्रांसफरर है ही नहीं। लूप आया ना, एक समझ में आ रहा है? एंड ट्रांसफर का प्रोसेस किस में है? 56(1) में। फिर एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करो, SH4 करो, नेम, एड्रेस, डिटेल्स, ऑक्यूपेशन इंटीमेट करो, कंपनी 1 महीना लेगी, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, बराबर है? यस और नो? तो जब सामने वाले को ही शेयर से हाथ धोना है, तो कैन एन ऑप्शन बी गिवन कि वो डायरेक्टली ट्रांसमिट के होने से बदले किधर हो जाए, ट्रांसफर ही हो जाए? यस और नो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी is regarding this option which transfers the shares directly. समझ में आ रहा है? Is that clear? तो 56(4) नहीं पढ़ रहे हम, 56(5) पढ़ रहे। 4 क्यों नहीं पढ़ रहे बाद में बताऊंगा। 56(5) the transfer of any security or other interest of a deceased person अंडी in a company made by his legal representative, मंडी का बेटा, ठीक है, even if the legal representative is not a holder, then it shall be valid as if he had been the holder at the time of execution of the instrument of transfer. यहां पे एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर दिया, यहां पे बोला भले वो होल्डर नहीं है। यहां पे एक प्रिंसिपल तुमको याद आना चाहिए, एटलीस्ट टू माय स्टूडेंट्स, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। नेगोशिएबल नहीं है भाई, होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? बताओ, दूसरे बता दो, चलो, इनको शर्म आनी चाहिए। गुड टाइटल, हाँ गुड टाइटल के बारे में क्या था, क्या ये नो वन कैन हैव अ बेटर टाइटल देन ही ऑलरेडी हैज, बराबर है? याद आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने पढ़ा था, अगर मेरा ही टाइटल डिफेक्टिव है तो मैं सामने वाले को बेटर टाइटल दे सकता हूं क्या? नहीं, बट उसके एक्सेप्शंस देखे थे, याद है? नाउ देखो, सोगा में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो सामने वाला क्या या कोई क्या बोलेगा, तेरे पास टाइटल ही नहीं है तो तू सामने वाले को कैसे बेटर टाइटल दे सकता है? समझ में आ रहा है? डिसीज पर्सन के पास टाइटल है क्या? एवरीबडी, डिसीज पर्सन के पास टाइटल है, सॉरी, डिसीज पर्सन के LR के पास टाइटल है नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कैन ही गिव अ बेटर टाइटल? नो। जब ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव टाइटल, कैन ही ट्रांसफर अ बेटर टाइटल? नो। अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो सामने वाले को भी क्या मिलेगा? डिफेक्टिव टाइटल ही। तो यहां पे एक डीमिंग फिक्शन, डीमिंग सेक्शन डाल दिया, डीमिंग प्रोविजन डाल दिया, दैट इट शैल बी वैलिड एज इफ ही वॉज द होल्डर। तो उसको हम क्या मान रहे? होल्डर, एंड होल्डर कैन ट्रांसफर गुड टाइटल, बराबर है? तो द टाइटल दैट द पर्सन गेट्स फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ गुड टाइटल, बिकॉज हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? द LR इज द होल्डर। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस, लिखो 56(5). ये लिखना नहीं, क्या डायरेक्ट क्या? 56(5) मैं डिक्टेट कराता हूं ना तुमको, टेंशन ले रहे हो? 56(5) ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय LR विदाउट बिकमिंग द ओनर। ट्रांसफर ऑफ
securities, transfer of securities by LR without becoming, transfer of securities by LR without becoming the owner. In case, abhi niche leave a line, write down, in case the LR transfers the share, in case the LR transfers the securities, in case the LR transfers the securities, in case the LR transfers the securities, even if he is not the holder, even if he is not the holder, even if he is not the holder, comma, it shall be valid, it shall be valid as if, it shall be valid as if the LR, as if the LR was the holder at the time of, at the time of execution of the एक मिनट at the time of, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या ये, हाँ तो शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसटीडी ना, तो कौन सा फॉर्म, तो ट्रांसमिट करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या डायरेक्ट एक ही चीज होगा, कौन सा, SH4, अब समझ में आ रहा है, at the time of execution of share transfer deed, at the time of execution of share transfer deed, STD. तो मैं अपने नाम पे लिए बिना SH4 कर दूंगा, बराबर ना, SH अपने नाम पे लिए बिना SH4 कर सकता हूं, यस या नो, बोलो ना, क्यों, this section makes me the holder, it assumes me to be the holder, and holder रहेगा तो हम क्या बन जाऊंगा मैं, ट्रांसफरर, सामने वाला क्या बन जाएगा, ट्रांसफरी, एंड फिर वो 56(1) के हिसाब से वो लोग ट्रांसफर कर देंगे। एक स्टेप अपन क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, कौन सा, ट्रांसमिशन वाला, समझ में आ रहा है, ट्रांसमिशन वाला स्टेप अपन स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब चिल्लर से सेक्शन से थोड़े सच्ची बहुत फटाफट, where any default is made in compliance from one subsection 1 to subsection 5, the company and every officer in default shall be liable to a penalty of how much, write down, penalty 56(6), 56(6), default under section 56(1) to 56(5), default under section 56(1) to 56(5) shall attract a penalty of 50,000 on the company and every officer in default. Penalty of 50,000 on the company and every officer in default. Officer in default, OID. Every officer in default. ठीक है, खत्म। 56(7). ये क्या बोल रहा है, एनी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, याद आ रहा है, NSDL CDSL या उसका DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड शेयर्स, मतलब DP या डिपॉजिटरी इटसेल्फ फ्रॉड अगर करेगी तो उनकी भी लायबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 447। अगेन
लिखो 56(7) खत्म हो गया, कुछ है नहीं ये सेक्शन में। 56(6), 56(7), ऑलराइट 56(7). अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में तुम 56(6) एंड 56(6) छोड़ दो, 56(7) पे कुछ लिखोगे, ध्यान दोगे? नहीं। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर ये सेक्शन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है? डीपी एंड डिपॉजिटरी इन केस फ्रॉड करता है तो लायबल रहेगा, ठीक है। इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? ऐसा लगता है ना? बट बन सकता है सितंबर। ये कब पूछेंगे? जब आपको फेल करना होगा ना उनको। यही हुआ, ये ऐसी ऐसी चीजें उठाई उन्होंने और पूछी। नहीं तो ये सेक्शन में क्या है? देयर इज नथिंग। आप देखो, अंडरस्टैंड समथिंग, आपको मुझे टेस्ट करना है। मैं अगर एक मेंसा का एग्जाम पेपर रखूंगा तो मैं तुमको 56(7) पे पूछूंगा क्या क्वेश्चन? आई विल आस्क यू 56(1), आई विल आस्क यू ट्रांसमिशन, ऑलराइट। मैं SH5, SH4 ये सब पूछूंगा कि भाई तू बता मुझे, तेरे को ट्रांसफर के बारे में आता है या नहीं आता। ऐसा घुमा फिरा के रीफ्रेस करके मैं ये पूछ लूंगा डिपॉजिटरी का, तो दिमाग घूमेगा ना बेटा। सितंबर में यही हुआ, गुस्सा निकाला इंस्टीट्यूट। ऑल राइट, इफ द डिपॉजिटरी 56(7), इफ द डिपॉजिटरी और द DP, if the depository or DP transfers shares with an intention, if the depository or DP transfers shares with an intention to commit fraud, shall be liable under section 447. खत्म। अब आते हैं, डिक्टेट पहले करना चाहिए था मुझे, सबका हो भी जाएगा, मेरे पेस पे भी होगा। ये सही है। तुमने आइडिया क्यों नहीं दिया पहले? मैं भरोसा किया ना तुम्हारे पे, इसके लिए गलती ये किया। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल ड्रग एडिक्ट्स प्लीज लुक हियर। 56 subsection 4, every company, ध्यान से everyone pay attention, every company shall deliver the certificates of all securities allotted, transferred or transmitted. मुझे एक बात बताओ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में इशू हो जाना चाहिए? थर्टी, 45, 3 months। क्या है? और कौन सा सेक्शन था? कितना? अनलिस्टेड के लिए 3 months, लिस्टेड के लिए 45। याद आया? ये टाइम लिमिट किसके लिए था बेटा? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? तुमने तब पूछा नहीं ओरिजिनल किधर है? आना चाहिए ना। तो देखो, इन्होंने कहां दिया ओरिजिनल का टाइम लिमिट? 56(4) में। डुप्लीकेट कहां है? 46(5). आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों ऐसे? देयर इज नो आंसर फॉर दिस, बट प्लीज अंडरस्टैंड। सी, वी आर स्टडिंग क्रिटिकली। सर वहीं दे देते ना, तुमने डुप्लीकेट का दिया तो ओरिजिनल ऊपर नीचे दे देते, क्लॉज ए बी करके दे देते, कोई सब सेक्शन ऊपर नीचे करके दे देते। नहीं, डुप्लीकेट का शेयर सर्टिफिकेट का सेक्शन अलग है, 46 में डाला। ऑल राइट, एंड न्यू फ्रेश ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट किधर डाला? 56 के अंदर। समझ में आ रहा है? 56(4) स्पेशली। अब ध्यान से, तो सर ऐसा क्यों? देखो, ये मेरे को तुमको रियलाइज करवाना पड़ता है। 46 है ना, बराबर है। अभी ध्यान से,
कल उठ के तुम बाहर जाएगा, बड़े पड़ेगा, काम वाम करेगा, तो तुम शो ऑफ कर सकता है ना बेटा। भाई ओरिजिनल का सेक्शन अलग है, डुप्लीकेट का सेक्शन अलग है। ये सब चीज़ें हर जन को, हर लोग को पता होता तो फिर ना तुमको मेरी ज़रूरत होती ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती। बराबर है? अरे हाँ या ना? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू बिल्ड। समझ रहे हो? ये पढ़ के कनेक्ट करके कि अब तुमको मालूम है कि भाई सेक्शन तुम निकालेगा, बोलेगा उधर क्या ढूंढ रहा है, ओरिजिनल उधर कहाँ ढूंढ रहा है, उधर नहीं है, ओरिजिनल का सेक्शन अलग है, डुप्लीकेट का सेक्शन अलग है। तो ही तो तुम वैल्यू ऐड करके तुम्हारे क्लाइंट को लपेटेगा ना भाई। अरे हाँ या ना? मेहनत कर रहा है तो लपेटेगा कि नहीं लपेटेगा? लपेटेगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? मुझे ऐसा लगता है तुमको पैसे वैसे नहीं कमाने हैं ना, सीए करके तुम हिमालय हिमालय जाने वाला है पहाड़ों में बस। ठीक है, पढ़े आगे। नाउ एवरीवन फॉलो। एवरी कंपनी शाल, ध्यान से, एवरी कंपनी शाल डिलीवर द सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड, ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिटेड। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन तो यही सेक्शन में पढ़ा। ऑल राइट, अलॉटेड मतलब कौन सा हो गया? वो अलॉटमेंट वाला सेक्शन जो हमने पढ़ा था, याद आया? तो अलॉटेड, ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसमिटेड, ये ओरिजिनल अलॉटमेंट की बात कर रहा है, ये डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा। तो ये शेयर अलॉटमेंट इज द ओरिजिनल अलॉटमेंट दैट द एक्ट इज टॉकिंग टू यू अबाउट। ठीक है, क्लॉज ए बी सी डी है। क्लॉज ए क्या बात कर रहा है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो स्टार्टिंग में मेंबर्स या प्रोमोटर्स को दिया था ना, इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो एक केस है। तो मतलब सब सेक्शन 4 इज कमिंग अप विद डिफरेंट केसेस। One is from the date of incorporation. What is the other case? Date of allotment. तो अलग अलग केस बन गए। पहला वाला केस कौन सा बन गया बेटा एवरीवन? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया। इनकॉर्पोरेशन याद है? तो जब सब्सक्राइब किया तो तुमको कितने महीने में करना है? 2 months। कोई फ्रेश इशू किया, ओरिजिनल अलॉटमेंट किया, फर्दर इशू किया, उसके कितने महीने में करना है? 2 months। तो ये बात ये दोनों की हो गई। सी, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अंडर सबसेक्शन 1। सेटिस्फाइड? कहां से आया? मैंने बोला 56(4) से आया, बट ये यहां पे रेलेवेंट था तो उसका रेलेवेंट पोर्शन मैंने इधर डाल दिया कि तुम्हारे पास कंप्लीट आ जाए भाई। शेयर इधर ऐसा ट्रांसफर होगा, ये इसको ऐसा देगा, इसमें ये ऐसा रहेगा, और 1 महीने में कंपनी को क्या कर देना है? शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या सॉरी ट्रांसफर को क्या कर देना है? रजिस्टर कर देना है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अंडर विच सेक्शन? 56(1). ट्रांसमिशन इज अंडर विच सेक्शन? 56(2). 3 नहीं बेटा, ट्रांसफर 1 and 3 में, ट्रांसमिशन इज अंडर 2। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अंडर सबसेक्शन 2 इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, और अगर डिबेंचर है, अगर डिबेंचर है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है, ठीक है, तो कैसा होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? 6 months। तो वी हैव 1 month, वी हैव 2 months। 2 months किधर है? हाँ, वी हैव 2 months, सॉरी, वी हैव 2 months फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड अलॉटमेंट, वी हैव 1 month फॉर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, एंड वी हैव 6 months फॉर डिबेंचर्स। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, बट ये कौन से इसके लिए लग रहा है? फिजिकल, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए। क्या ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का सेक्शन डीपीज या डीमैट सिक्योरिटीज को लगता है? नहीं लगता। तो नहीं लगता है, द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स फॉर अलॉटमेंट टू द डिपॉजिटरी
इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज, वहां पे इमीडिएटली होगा भाई, जैसा बताया वैसा इमीडिएटली कर देना है। इसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट ट्रांसफर डीड नहीं होता है, जैसा बेचा वैसा इमीडिएटली आपका रजिस्टर हो जाता है। आप खरीदते हो ना शेयर्स, जीरोडा या वो क्या नाम है, ग्रो ग्रो करके ऐप है, बराबर है। तो ये सब क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये ट्रांसफर्स करते हैं, इमीडिएटली आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो प्रोवाइडेड दैट वेयर द सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद इन अ डिपॉजिटरी, द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू द डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज। जैसा अलॉट किया वैसा आपको किसको बता देना है, डिपॉजिटरी को। बस इतना, उसमें ये इसमें इतना कुछ खास बात नहीं है। जो बात इधर है वो इधर है। 2 months बेटा, 2 months from incorporation, then again 2 months from date of allotment, 1 month from transfer या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है? मैंने तुमको बोला था ट्रांसमिशन हमेशा इंटीमेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रिसीव किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, बराबर है। सो 1 month इधर है एंड 6 months इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। तो इन केस अ कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, सब्सक्राइबर टू द एमओए को कितने दिन में मिलेगा, 2 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन द केस ऑफ अलॉटमेंट ये कौन सा है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months, बिकॉज डुप्लीकेट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 46। इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन विद इन 1 month, जो मैंने जहां रेलेवेंट था वहां पे कवर करा लिया। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट, बराबर है, क्लियर है, समझ गया। नाउ ये लिख लो आप, ये चार्ट इजी रहेगा डिक्टेट करने से, बेटर लंबा हो जाएगा डिक्टेट कैसे।
ऑल राइट, हो गया ये। उसके नीचे लिखो इन केस, ये सब आपने लिखा ना, उसके नीचे लिखो इन केस the securities are held in a depository, in case the securities are held in a depository, the company shall intimate the details of allotment, immediately to such depository, मतलब कंपनी एंड डिपॉजिटरी का जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है भाई। जैसा आपने अलॉटमेंट किया वैसा इमीडिएटली आपको डिपॉजिटरी को बता देना एंड डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड्स क्या करेगी, अपडेट कर लेगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, 56 हो गया, पूरे हो गए सब सेक्शन 7, बराबर है। ऑल राइट, तो मेरे साथ एक बार फटाफट 56 को रिवाइज कर लो। ऑल राइट, 56 को रिवाइज कर लो। व्हाट डज 56(1) टॉक अबाउट बेटा? मुझे बताओ खाली, व्हाट डज 56(1) टॉक अबाउट? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर है। ऑल राइट, नाउ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू डिलीवर समथिंग, डिलीवर डैश, तो व्हाट डू वी कॉल इट एज? शेयर ट्रांसफर डीड। उसके लिए फॉर्म क्या है? SH4। हु कैन सबमिट द शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? एनीवन मतलब द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। SH4 के अंदर क्या होना चाहिए? इट शुड स्पेसिफाई व्हाट? नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इफ एनी। SH4 itself should be stamped, dated and executed on behalf of और ट्रांसफरी। कोई एक जन एग्जीक्यूट करेगा। ट्रांसफर में एक ही जन का ही साइन लगता है। बायर साइन करेगा, सेलर नहीं करेगा, सेलर करेगा तो बायर नहीं करेगा, ऐसा है क्या? एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, या तो ट्रांसफरर खुद करे या उसके बिहाफ पे मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करे, दोनों चलेगा। समझ में आ रहा है? दोनों करेंगे, ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी। सबमिट में कोई एक है। ऑलराइट, डीड तो दो में एग्जीक्यूट होगा ना, खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खेल रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो इट विल बी सबमिटेड बाय बोथ। समझ में आ रहा है? डज दिस अप्लाई टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स? नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, तो कंपनी को क्या करना है? इंटीमेशन देना है प्लस सर्टिफिकेट ऑफ बॉन्ड देना है। अगर नहीं है तो क्या देगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ ट्रांसफर या ट्रांसफरी शैल सबमिट द SH4 विद इन हाउ मेनी डेज? 60 days along with the शेयर सर्टिफिकेट। अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आएगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। एंड कंपनी क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा विद इन 1 month। विद इन 1 month कहां से आया हम लोग को? सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 4 से। ऑल राइट, डीमैट को नहीं लगेगा। एंड इन केस एक प्रोवाइजो है, द STD, द शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट और नॉट डिलीवर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑन इंडेमनिटी रजिस्टर दिस ट्रांसफर बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या सबको समझ में आ गया? क्लियर है? फिर हम 56(3) में गए थे। इट वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ व्हाट? पार्टली पेड अप शेयर। क्या कंपनी डायरेक्टली कर लेगा? क्या कंपनी डायरेक्टली रजिस्टर कर देगा? नहीं। रजिस्टर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर, बराबर है। हियर हु विल अप्लाई? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी? अरे बोलो ना यार, ट्रांसफरर शैल अप्लाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हु विल सेंड नोटिस to the transferee? Reply within, if no reply deemed no objection, बराबर है। एक बार ये हो गया तो कंपनी शाल रजिस्टर कितने? विद इन 1 month। समझ में आ रहा है? बट यहां पे नोटिस क्या रहेगा? SH5, बराबर है। 56(2) हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इफ द कंपनी वांट्स टू ट्रांसमिट द शेयर्स
टू द ट्रांसफरी, ट्रांसफरर तो नहीं रहेगा ना बेटा, एक ही बंदा रहेगा, ट्रांसफरी ऑन इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन, बराबर है। वहां पे सबमिशन एप्लीकेशन SH4 कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कंपनी को हमको बताना है, इन्फॉर्म करना है। नाउ व्हाट इफ ये बंदे को डायरेक्टली शेयर्स चाहिए ही नहीं, बोल रहा है पनौती शेयर्स है, तो हमने क्या बोला, ट्रांसफर डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग द ओनर, बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ द नथिंग, मतलब हियर he can transfer a better title because we will assume that the LR is the holder at the time of the share transfer deed. वो सीधा 56(1) में ट्रांसफर डॉक्यूमेंट SH4 वाला प्रोसेस फॉलो करेगा। 56(6) के अंदर पेनल्टी थी, पेनल्टी ऑफ हाउ मच, 50,000 फॉर द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल रहा है, कर रहा है फ्रॉड, टू विल बी लायबल अंडर 447। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट शैल बी लायबल। इट मतलब द डिपॉजिटरी इटसेल्फ, समझ में आ रहा है? यहां पे किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, कंपनी में बोला ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी लपेट लो, यहां पे नहीं बोला जो ऑफिसर डिफॉल्ट कर रहा है वो। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब द बॉडी इटसेल्फ, बिकॉज यहां पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इट शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। क्लियर है? 56(4) में हमने कितने केसेस देखे थे बेटा, हाउ मेनी क्लॉजेस? अरे बोलो यार, हाउ मेनी क्लॉजेस? 4 क्लॉजेस। तो क्या क्या केस हमारे बने, एक था न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, दूसरा क्या था, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, बराबर है, और ट्रांसफर या ट्रांसमिशन एंड अलॉटमेंट। डुप्लीकेट वाज इन 46, ओरिजिनल इज इन 56। समझ में आ रहा है? अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है या अलॉटमेंट हो रहा है तो कितना मंथ, 2 मंथ्स। ऑल राइट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन 1 मंथ और डिबेंचर्स 6 मंथ्स, बराबर है। एंड द सेम शैल नॉट अप्लाई टू डिपॉजिटरी बिकॉज वो बोला इमीडिएटली आपको करना। तो इससे हमारा सेक्शन 56 हो गया। 57 पे आ जाओ, चिंदी सा सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। पीटीएम याद है तुमको? पीटीएम गए हो, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये मेंसा वाली नहीं, स्कूल वाली। स्कूल वाली याद है कि नहीं? कुछ किया है उधर, झोल किया है कभी तुमने? हाँ, किसका क्या किया है? सड़क से किसी को भी उठा लिया, बोला आजा डैडी बन के आजा, ऐसा कुछ किया है तुमने? नेबर वेबर को बुलाया है, बड़ी बहन को लेके गया माँ बना के, है ही नहीं, किया है? होता है ना, सुना तो होगा ना यार। किसी को भी उठा लिया, बोला चलो चलो यार अभी डैडी को बताएंगे, डैडी तो उधर ही चटनी बना देंगे, बराबर है। बड़े भाई, नेबर, बिल्डिंग में से किसी को भी लेके गया, बोला हाँ ये मेरे डैड है या ये मेरा बड़ा भाई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या किया आपने, आपने क्या किया, आपने किसी बंदे को इम्पर्सनेट किया। समझ में आ रहा है? दैट मिस्टर एक्स क्या बन के गया, एज योर फादर, योर ब्रदर या वॉट एवर, बराबर है। तो कंपनीज क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट की भाई यहां पर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई फॉल्स ओनर आ जाए, हमें नहीं समझ में आए, हमारे साथ चीटिंग हो जाए। ऑल राइट, इफ एनी पर्सन डिसीटफुली, डिसीटफुली मतलब क्या, विद एन इंटेंशन टू चीट, पर्सोनेट्स एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, शेयर वारंट, कूपन, कुछ भी डॉक्यूमेंट का इम्पर्सोनेशन हो रहा है। नाम एक्चुअली सार्थक का, मैं सार्थक बन के चला गया, फेक आधार कार्ड, हाँ मैं बोला मैं ही सार्थक हूँ, सार्थक का साइन भी साइन कर दिया उधर, तो इम्पर्सोनेट हो गया, बराबर है। कंपनी थोड़ी ना देखेगा, कंपनी मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, रजिस्टर में देखेगा फोलियो नंबर पे कौन आ रहा है, सार्थक, ये कौन है, सार्थक, ठीक है। अभी मैंने आधार कार्ड दिखा दिया, फॉर्जरी कर दी, सब चीज कर दिया, आई एम इम्पर्सोनेटिंग अ पर्सन, समझ में आ रहा है। एंड देयर बाय ऑब्टेन्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन एनी सच सिक्योरिटी। देखो, मिल गया या इवन ट्राई किया, दोनों में फर्क है। तुम ट्राई किया, तुमको लपेट लेंगे, तुमको मिल गया तो वो तो लपेटना ही है, समझ में आ रहा है। एनी सिक्योरिटी, ये सब ठीक है, और रिसीव्स एनी मनी, ही शैल बी, ध्यान से, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, सीधा जेल, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मतलब मिनिमम जेल टाइम कितना है, 1, मैक्सिमम कितना है, 3, एंड और नहीं है, काफी जगह पे हमने क्या देखा, और
या तो जेल होगी या तो फाइन होगा या तो दोनों हो सकता है. यूजुअली द वर्ड लॉ इज वर्डेड दोनों होगा. एकदम सिवियर ऑफेंस किया तो आपके दोनों लग सकता है. यहां पे क्या है, दोनों लगेगा. इट इज एंड. जेल भी होगी एंड फाइन भी लगेगा. मिनिमम कितना, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 लाख. समझ में आ रहा है? क्लियर है? इजी है. इतना कुछ इतना बड़ा लिखने का कोई उनको जरूरत नहीं है. बस खत्म हो गया. पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट्स ओनर ऑफ शेयर्स और एनी सिक्योरिटीज इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 3 years एंड फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 lakhs. ठीक है, लिखो सेक्शन 57. सेक्शन 57 पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन. जो बोल रहा वो लिखो. पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर. पर्सोनेशन ऑफ punishment for personation of shareholder. ठीक है. if a person deceitfully personates owner of shares or securities, if a person deceitfully personates the owner of shares or any securities, he shall be punishable with पॉइंट नंबर 1 या ए ऐसा लिख दो. imprisonment minimum 1 maximum 3 and fine minimum 1 maximum 5. ए imprisonment, बी फाइन. तो imprisonment में min max लिख दो. min 1 year, max 5 years 3 years एंड क्या है मॉनेटरी फाइन में 1 and 5. खत्म हो गया 57. खत्म हो गया 57. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 59. ठीक है, ऑल राइट. सेक्शन नंबर 59 ध्यान से एवरीबडी. क्या हुआ बेटा, आप अभी तक लिख रहे हो, क्या अटके? ही शैल बी पनिशेबल विद ए imprisonment dash minimum 1 year, maximum 3 years, fine B fine minimum 1 lakh, maximum 5 lakhs. ठीक है, ऑल राइट. क्या बोल रहा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या रहेगा? अभी तक तुमको क्या मालूम है? मेंबर्स के रजिस्टर में क्या रहेगा? नाम, पता वता, ये सब, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और भी सारी चीजें रहती है. दैट वी विल सी व्हेन वी डू सेक्शन नंबर 88. 88 टॉक्स अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अभी के लिए इतना तुम्हारे लिए काफी है. ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है? रेक्टिफिकेशन. मतलब क्या हुआ? कुछ गलती हुई. अब गलतियां किस प्रकार की हो सकती है? सोचो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ. नाम का स्पेलिंग थोड़ी बड़ी सोच करो. हाँ, एड्रेस, डिटेल्स छोड़ दो. देखो मैं बताता हूं, मोटा मोटा नाम ही नहीं है. बड़े बड़े कांड करेंगे ना यार. नाम ही नहीं. शेयर है, नाम नहीं है. नाम है, शेयर नहीं है. एवरीबडी, शेयर है, नाम नहीं है. नाम है, शेयर नहीं है. सर
नंबर ऑफ शेयर्स में 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, वो तो फिलिंग अप डिटेल्स है, बराबर है। बट मेजर रेक्टिफिकेशन हमको क्या चाहिए रहेगा, नाम है शेयर नहीं है। तो सर नाम है शेयर नहीं है तो अच्छी बात है ना, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे नाम पे शेयर आ गए ना, कल उठ के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मैंने डाल दिया करण का नाम, तो करण को तो फ्री में मिल गया ना शेयर्स, यस और नो। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, गलती क्या हुई, करण का नाम डाला और करण का नाम डाला और उसके आगे शेयर नंबर लिख दिया, ये शेयर टू ये शेयर करण के नाम पर है। तो अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात क्या है? तो अब तुम तेरा नाम लिख दूं तो तेरे लिए अच्छी बात हो जाएगी, बराबर है। तो बुरी बात है या अच्छी बात है? क्यों बुरी बात है? एक्चुअल ओनर को जाने दो ना, छोड़ो ना, क्या करना है अपने को। सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ध्यान से, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपका नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया तो उसके साथ उसकी ड्यूटीज, कुछ कॉल मनी आया तो फिर करंट से मांगेंगे ना, फर्दर लाइबिलिटीज, कॉल, अरियर, सब चीज किस पे हो जाएगा, करण पे हो जाएगा। तो करण पहले क्या बोलेगा, भाई पहले हटाओ मेरा नाम, मैं तो शेयर होल्डर ही नहीं हूं, मेरा नाम क्यों है इधर, सही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर शेयर है नाम नहीं है तो भी तकलीफ है हमको। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ आपको, ये केसेस समझ में आ रहा है। थर्ड है वॉट एवर रीजन, सफिशियंट कॉज, कंपनी ने डाला ही नहीं, विदाउट एनी सफिशियंट कॉज। नाउ प्लीज एवरीवन फोकस फुल अटेंशन ऑन द बेयर एक्ट। इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज, क्या लिखा हुआ है, इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज विदाउट, बेफजूल, विदाउट एनी रीजन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब देखो विदाउट सफिशिएंट कॉज मतलब यही हुआ ना, बे रीजन डाल दिया। अब रीजन क्या होना चाहिए, शेयर्स है तो ही नाम आना चाहिए ना यार, और आया तो क्या करने का, डर जाने का। तो केस नंबर 1 इज फिनिश्ड। और आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर विदाउट सफिशिएंट कॉज ओमिटेड देयर फ्रॉम, ओनर था, नाम हट गया, डिलीट हो गया, ऑलराइट। मतलब क्या हुआ, शेयर्स है नाम नहीं है। पहला वाला केस क्या था, नाम है शेयर्स नहीं है, ठीक है। और इफ अ डिफॉल्ट इज मेड और unnecessary delay takes place in entering in the register, मतलब क्या है ये कौन सा केस कवर कर रहा है, लिंक करो, चलो लिंक करने का है पूरा गेम। वन मंथ, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, विदाउट एनी रीजन तुमने सामने वाले का नाम नहीं डाला, तूने ट्रांसफर किया, अलॉट नहीं किया, नाम नहीं आया, तो तीनों चीजें इधर कवर्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लिंक हुआ यहां से। और द हैविंग बिकमिंग सीज टू बी अ मेंबर, इधर किधर गया, और इफ अ डिफॉल्ट इज मेड, ठीक है, और unnecessary delay takes place in entering in the register, the fact of any person having become or cease to be a member, having become मतलब किसका नाम आना चाहिए था, ट्रांसफरर का, ट्रांसफरी का नाम आना चाहिए था, बराबर है। डज एवरीवन अग्री, ट्रांसफरी का नाम आना चाहिए था, तुमने नहीं डाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीज टू बी अ मेंबर मतलब ट्रांसमिशन वाला केस, उसका नाम हटा के आपको किसका डालना चाहिए था, नया लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम डालना चाहिए था, ठीक है। द पर्सन अग्रीव्ड, जिसके साथ गलत हुआ है, और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी में अपील इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द ट्राइब्यूनल और टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया स्पेसिफाइड बाय सीजी बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन। ये ठीक है, ये जाने दो, जब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होगा वो देखेंगे, ऑल राइट। अभी अगर मैं बात करूं यही की, तो 3 पॉसिबल केसेस बने हमारे, ऑल राइट। शेयर्स आर नॉट बॉट बट नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर्स आर बॉट बट नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या देर इज unnecessary delay. Now as may be prescribed, याद आया था फॉर्म, that is NCLT 1, any member, aggrieved person or any member or the company
में अप्लाई टू whom बेटा, NCLT, टू क्या, इन फॉर्म NCLT 1। तो रेक्टिफिकेशन में अभी हमने नया फॉर्म पढ़ा, विच इज द फॉर्म NCLT 1। NCLT 1 इज व्हाट, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या होगा, when name is, when shares are not bought and name is entered, when shares are bought name is removed, all right, unnecessarily, या there is unnecessary delay without sufficient cause। आपने वो 1 महीना कर दिया और आपने कुछ बताया भी नहीं, डिले भी नहीं किया, कोई रीजन, विदाउट एनी रीजन आपने टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया या डिफॉल्ट कर दिया, ये सब चीजें कवर होती है विच अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 59। ठीक है, अब 59(2), द ट्राइब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर सबसेक्शन 1 बाय ऑर्डर आइदर डिसमिस द अपील, मतलब रिजेक्ट कर देगा एवरीबडी, 59(2) में या तो रिजेक्ट कर देगा, और डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो आपके साथ गलत हुआ, आप प्रोसेस है ये बेसिकली, आपके साथ गलत हुआ, आपका नाम नहीं आया, कंपनी ने आपको नहीं रजिस्टर किया, या आपका नाम अननेसेसरीली आ गया, तो आप किधर अप्लाई करोगे, NCLT, इनफॉर्म NCLT 1। NCLT क्या करेगा, आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट, एवरीबडी आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट। रिजेक्ट मतलब डिसमिस कर दिया, बोला तू टाइम पास कर रहा है, बग गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एक्सेप्ट किया तो ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करने के कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर क्या करेगा कंपनी, रेक्टिफिकेशन करेगा। ऑल राइट, 10 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर्स और डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिपॉजिटरी और द रजिस्टर, and in the latter case direct the company to pay damages if any sustained to the party aggrieved। मतलब फिजिकल है तो रजिस्टर में करो, डीमैट है तो डिपॉजिटरी में करो, प्लस डैमेजेस भी, तकलीफ हुआ ना बेटा, करण इतना भागा दौड़ा, चक्कर हुआ, NCLT के पास जाना पड़ा, लॉयर करना पड़ा, लीगल चार्जेस करने पड़े, मेंटली टॉर्चर हो गया बेचारा, ठीक है, ट्रॉमा हो गया उसको इतना, बोला कभी कोर्ट कचहरी देखा नहीं, मेरे को NCLT आना पड़ा, इट्स वेरी बैड। तो NCLT उसको डैमेजेस भी दे सकता है इफ एनी सस्टेन्ड बाय द पार्टी अग्रीव्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, चलो चलो इतना 56 1 and 2 के लिए काफी है, फिर आगे मैं थोड़ी बात करूंगा। लिखो ये 59, यहां तक लिखो, फिर मैं तुमको डिक्टेट करूंगा। 3 possible cases, then I will dictate। 3 possible cases, then I will dictate। हो गया लिख के? तो फिर बात क्यों कर रहे हो, मेरे को बात ही नहीं चाहिए इधर। नहीं, बस यहां तक लिख लिया आपने, पहले केसेस लिख लिया।
All right. Write down. The aggrieved person or any other member or the company may apply to the NCLT in form NCLT 1. ठीक है. 59 subsection 2. The NCLT may accept or reject such application. The NCLT may accept or reject such application by way of an order. ठीक है. In case NCLT accepts the application, comma, it shall order the company to make the necessary rectifications. It shall order the company to make necessary rectification within 10 days of receipt of order. Rectification. मैं उसको देख के डिक्टेट कर रहा था. इसका ही पेपर खत्म होगा मेरे को लगता है. Within 10 days of receipt of order by the company. ठीक है. And pay damages to the aggrieved party. ऑल राइट. ध्यान से सुनो एवरीबडी. सर्वेश के पास शेयर्स थे, सर्वेश का नाम नहीं था, तो क्या होगा? कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? टू द अग्रीड पार्ट. ठीक है. सेक्शन कौन सा अट्रैक्ट होगा? 59. पूरा झमेला करेगा, एनसीएलटी पे जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, और हियरिंग पे आएगा. विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर है. 10 days के अंदर हियरिंग नहीं होगी. समझ में आ रहा है? विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर. ठीक है बेटा, ध्यान दो. क्या बोला मैंने अभी लास्ट? नहीं, मैं एग्जाम्पल क्या डिस्कस कर रहा था. ठीक है. सर्वेश क्या? सर्वेश. ऑल राइट. ध्यान से सुनना. अभी मुझे एक बात बताओ. देखो, लीगैलिटी समझो. सर्वेश का नाम नहीं है, बट सर्वेश को जय ऑफर देता है. अरे हंसी क्या आती है भाई तुमको हर चीज में? बोलता है ये शेयर मैं इतने प्राइस में लेने के लिए तैयार हूं. तो कैन ही एग्जीक्यूट SH4? कैन ही एग्जीक्यूट? क्या मतलब शॉक हो गया कि सुना नहीं? हाँ, उसका नाम नहीं है, सर्वेश को शेयर बेचना है. कैन ही एग्जीक्यूट SH4 एज पर 56(1)? आया ना लीगल एस्पेक्ट? प्रॉब्लम को प्लग करना है. ठीक है.
प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या बोलोगे, बेचोगे कि नहीं बेचोगे? जय को क्या बोलेगा, जान दे जय, देख मेरा नाम नहीं आया ना रजिस्टर में, तो इसके लिए मैं तेरे को नहीं बेच सकता, ठीक है, तू बाद में आना। तो बोला चल तेरे को बाद में आना है तो मैं किसी और से नहीं ले लूँ। जय भी यही बोलेगा ना, देख आज का भाव ये है भाई, बाद में अपने को नहीं मालूम क्या होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैन ही एग्जीक्यूट SH4, यस और नो? मान लो SH4 एग्जीक्यूट किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? SH4 एग्जीक्यूट किया, ऑल राइट। क्या नाम बेटा आपका? हाँ आपका नहीं, आपके पीछे। मैं काना नहीं है ना, मतलब मैं वो हर बार मेरे से यही होता है, मैं ऐसा दिख रहा है ना, आई कांटेक्ट रखता है, तुमको ऐसा लगता है मैं ऐसा यहाँ देख रहा है बट मेरा नजर उधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? है क्या ऐसा? है तो बोलो, मैं ट्रीटमेंट कराएगा, उतना पैसा है ठीक है कि कुछ करा लेगा, आंख सीधी दिखना चाहिए। हाँ वो 2 दिखता है, बराबर है, ठीक है। आपको आपको यस, क्या नाम बेटा आपका? ध्वनि। समझो ध्वनि वहां की CS है, ठीक है। सर्वेश का एप्लीकेशन आया SH4 के अंदर, ध्वनि ने देखा सर्वेश, रजिस्टर ऑफ मेंबर खुला, सर्वेश है ही नहीं, लिया एप्लीकेशन फेंक दिया। टाइम पास करने को आते इधर उधर, बोले जाओ यहाँ से। समझ में आ रहा है? वो रुका हुआ है। अब देखो चेन ऑफ इवेंट समझो, अब ध्वनि अंडर नो ऑब्लिगेशन ना, ऐसा कोई कल उठ के क्या हर एप्लीकेशन वो प्रोसेस करेगी, वो भी तो वेरीफाई करेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो नहीं है, उठाओ फेंको, ये टाइम पास है, क्या मालूम गलत कंपनी डाला, गलत फॉर्म डाला, गॉड नोज। सर्वेश बोल रहा है यार 1 महीना हो गया विदाउट एनी सफिशिएंट और रीजन, गिविंग एनी रीजन, भाई कंपनी ने मेरा डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर बाद में सर्वेश को मालूम पड़ा मेरा तो नाम ही नहीं है, अब वो भाग रहा है किधर, NCLT, वहां उसका सेल डीड रुका हुआ है, यहाँ पे NCLT पे जाना है। ट्रॉमेटाइजिंग है कि नहीं है? इजी ट्रांसफर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, बिकॉज कंपनी प्रोसेस नहीं करेगी, उसका नाम नहीं है, नाम डालने के लिए NCLT के पास जाओ, ऊपर से पेनल्टी लगेगी वो अलग, बिकॉज विदाउट एनी रीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब ट्रिगर होता है चेन। तो यहाँ पे फिर एक नया सबसेक्शन डाला, नया प्रोविजन डाला बेटा उन लोग ने कि भाई नथिंग कंटेन्ड अंडर दिस एक्ट, ध्यान से सुनो, नथिंग कंटेन्ड अंडर दिस एक्ट शैल अप्लाई और रिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान से सुनो, ये तो एक तो ट्रांसफर की बात कर दी, व्हाट अबाउट डिविडेंड, व्हाट अबाउट वोटिंग राइट्स? शेयर है नाम नहीं है, क्या करूं, नहीं मिलेगा डिविडेंड, पागल हो गया क्या? समझ में आ रहा है? शेयर्स है नाम नहीं है तो क्या वोटिंग राइट नहीं मिलेगा? नाम नहीं है तो क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा? आई हैव पेड, आई हैव फिजिकल दिस थिंग, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे नहीं है, उसके शेयर सर्टिफिकेट में तो उसका नाम है ना भाई। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ROM में नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट में तो रहेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है ROM के अंदर, इसके लिए मिसमैच हो रहा है। तो क्या बोला इधर, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर सच सिक्योर। तू बिंदास कर, कंपनी ने गलती किया है ना, तो तुझे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऑल राइट, इट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर, एनी acquiring and any person acquiring such security shall be entitled to voting rights। मतलब जय को वोटिंग राइट्स भी मिलेगा और उसका SH4 भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब रेक्टिफिकेशन या नाम स्किप होने से आपके ट्रांसफर राइट्स एंड वोटिंग राइट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना यही इश्यूज आ जाएंगे ना। देखो प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम को प्लग करना सीखो। नहीं तो बोलेगा सर नाम नहीं है, नाम नहीं है तो SH4 नहीं होगा, SH4 नहीं है तो ये नहीं होगा, नाम नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो अटक जाएगा, NCLT अलग जाओ ना। बोला NCLT का पैरेलल चलने दो, आपका ट्रांसफर एग्जीक्यूशन पैरेलल चलने दो, कंपनी के वजह से शेयर होल्डर या मेंबर को नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सबसेक्शन 4 अगेन चिंदी सा सबसेक्शन है, ध्यान से सुनो। इफ द ट्रांसफर, ये बोल रहा है, इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ, ऑल राइट, उसमें मेंशन भी किया SCRA स्क्रा हमने देखा, सेबी हमने देखा, ठीक है, या एनी अदर लॉ, ठीक है, और एन एप्लीकेशन मेड बाय द डिपॉजिटरी, DP होल्डर या एनी अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, कैन अप्लाई एंड गेट द राइट और गेट द नेम रेक्टिफाइड, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है सच। समझ में आ रहा है? यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो इस सबसेक्शन 3 नंबर, सबसेक्शन 3 क्लियर? यस। तो मतलब नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन विल अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर और इन केस ऑफ वोटिंग राइट्स। बोला ठीक है, आप अपना पैरेलल कंटिन्यू करो,
हम एनसीएलटी के थ्रू आपको नाम चेंज करवा के, नाम ऐड करके, नाम मॉडिफाई करके दे देंगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? चलो राइट डाउन बेटा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3, दिस सेक्शन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, लिखो, दिस सेक्शन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, this section does not restrict the transfer of shares, a transfer of securities by the holder लिखा, and the person acquiring, and this does not restrict the transfer, and the person acquiring such shares, person acquiring, यहाँ shares ही है, securities नहीं, securities। आगे तो देखो क्या लिखना है, shares having voting rights, securities में थोड़ी ना voting right लिखेगा, ठीक है, shares having voting right। उसके बाद लिखो सबसेक्शन 4 लिखो, if the transfer is in contravention of, ये 3 और एनी अदर लॉ, SCR स्क्रा 1956 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA लिखो चलेगा, स्क्रा 1956, कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा सेबी एक्ट 1992 और एनी अदर लॉ, सेबी एक्ट 1992 और एनी अदर लॉ। Then on application by the aggrieved party, to the tribunal, comma, it may order to rectify the ROM मतलब register of members, ROM of the company or depository, sorry बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, सुनो देख लेते एक बार कैसे ये प्रोविजंस को टेस्ट किया जाता है। रमेश, अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, सेंट अ ट्रांसफर डीड ड्यूली साइंड बाय हिम एज ट्रांसफरी एंड हिज ब्रदर सुरेश, देखा इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज, मैं तुमको क्या बोला, राम श्याम रमेश सुरेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसमें क्या आया था, क्रिस्टोफर, डेविड, ठीक है। ऑल राइट, हिज ब्रदर सुरेश एज ट्रांसफरर for registration of transfer of shares to Ryan Entertainment Private Limited at its registered office in Mumbai. He did not receive the transferred share certificates even after the expiry of 4 months from the date of dispatch of transfer deed. Is there any liability of the company and officer in default in the said manner? कौन सा section? क्या तुम अभी 59 पढ़ा रहा था तो क्या पुराना डिलीट कर दिया? अरे अभी पढ़ाया मैंने, कौन सा सेक्शन?
एवरीबडी 56 में आप बताओ क्या क्या लिखोगे ये क्वेश्चन के लिए। सबसेक्शन 1 में क्या लिखोगे? फिफ्टी सिक्स 1 बताने का जरूरत है इधर? तो फिर क्या बताओगे? बताओ। एनालाइज कैसे करोगे बताओ? 56 1 लेट्स 56 1 छापेंगे कि नहीं छापेंगे इधर? नहीं छापेंगे। क्यों छापेंगे 56 1? डीड में कोई प्रॉब्लम है क्या? डीड साइन क्या भेज दिया, हो गया ना। उसने 56 1 तो फॉलो कर लिया, फिर तो 56 1 इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। फिर 56 4 तुम इधर ज्ञान दोगे कि भाई कितने महीने में देना है? 1 2 6 हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ बराबर है। 1 मंथ में हम लोग को करना है। अरे हाँ या ना? फिर नहीं किया तो कौन सा सबसेक्शन में लपेटे जाओगे? 56 6 in contravention, if there is any contravention between from in subsection 56 1 to 56 5, क्या है पेनल्टी? 50,000 on a company and every officer in default। समझ में आ रहा है? देखो इजी इजी चीजों में भी तुम गलत, इसके लिए पेपर खत्म नहीं होता। तुम लिखोगे 56 1, लिखने से कोई वो नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा, उस पर आपको कुछ मिलने नहीं वाला। और 56 1 बड़ा सेक्शन है, तुमने लिख के 10 मिनट उधर वेस्ट कर दिया, और फिर लिखते लिखते बोला आप छोड़ो फटाफट 56 4 और वो डाल के खत्म करो। तो जहाँ क्वालिटी दिखनी चाहिए थी वहां नहीं दिखाई, और दिखाया 56 1 में जिसका जरूरत नहीं था। तो तुमको पहले बताना पड़ेगा कि 56 4 में भाई 4 महीना क्या कर रहा है, 1 महीने का टाइम दिया, अब तेरे से कॉन्ट्रवेंशन हुआ ना तो तेरे पे 56 5 भी 6 भी लग रहा है कि 1 to 5 में पेनल्टी दी तो 50,000 रुपए का ऑन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। रैन एंटरटेनमेंट के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? आंसर करने का स्टाइल समझ में आया? ठीक है। एक और क्वेश्चन। क्या तुम ब्रेक का एक्सपेक्टेशन पे बैठा है क्या? पागल आगल हो गया है? नो चांस, नो चांस, ब्रेक के लिए भी नो चांस। चलो ठीक है, नहीं इसके बाद देखेंगे वो क्वेश्चन। अब क्या ब्रेक ब्रेक? तो बैठो भाई। क्या जान वाले मई में दे रहे क्या? ऐसा कुछ है? इंटीमेशन दे दो मुझे तुम, हम मई में दे रहे, मैं एसएम चालू कर देता हूँ, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गलती किया एसएम स्टार्ट करके। हाँ, तुमको बस जब भी आया एसएम ही देखना रहता है, ठीक है? जब तुमको मालूम ही नहीं रहता एसएम क्या है तो तुम चुपचाप बैठा रहता है इधर, ठीक है? मेरे को नहीं करना चाहिए था, वो एक बैकफायर हो गया मेरे से मूव। मैं सोचा पैरेलली हो जाएगा, बट एसएम इज स्मॉलर बेटा, एसएम का स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? कंपनीज एक्ट इज बिगर वास्ट, हमको उतना करना भी तो पड़ेगा, और सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं? मे वालों को टेंशन नहीं है, ठीक है? मे वाला बोला एसएम करो, कंपनीज एक्ट करो, वो कुछ भी बोलेगा बेटा। हाँ, इसके लिए तुम लोग को प्रॉब्लम है, जैन वालों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है? ऑल राइट। हाँ बोलो। हाँ
तो तू 11 चैप्टर को नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब थोड़ी ना डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ सेक्शंस के हिसाब से करेंगे ना। कंपनीज एक्ट ऑलमोस्ट 50% हमारा हो गया बेटा। अब कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हम फिर एक चैप्टर में डिविडेंड उड़ाएंगे, एक चैप्टर में चार्जेस उड़ाएंगे, एक लेक्चर, एक डेढ़ लेक्चर में, फिर एक दो लेक्चर के अंदर हम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उड़ा देंगे। तो ऐसा हम लोग फट से 8 पे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर बचता एक ही बड़ा चैप्टर है। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेके एलएलपी स्टार्ट करूंगा, कंपनीज एक्ट से थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर एलएलपी स्टार्ट करेंगे, जहाँ कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी थोड़ा मैच करता है। फाउंडेशन में भी यही हुआ था, तो वहाँ हम थोड़ा एलएलपी उठा के करेंगे, फिर बाकी सब चीज़ें उस हिसाब से जाए। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो देखो क्या कॉम्प्लेक्स है इधर वो। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या। ऑल राइट, सेक्शन 58 ध्यान से सुनो। सेक्शन नंबर 58, देखो 58 करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब ध्वनि इज द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं, ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, शी इज द ऑफिसर इन चार्ज। सर्वेश ने भेजा, ऑल राइट, सर्वेश ने भेजा एप्लीकेशन, उसने देखा, फेंक दिया, नहीं करना मेरे को, रेफ्यूज्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, रेफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी मुझे एक ध्यान से बात सुनो, अब रेफ्यूजल के लिए भी कोई रीजन है तो ठीक है, एक अलग चीज है। दो चीजें, एक तो आपने रीजन दिया, वो रीजन कैन बी जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, वॉट एवर मे बी, देर इज लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर मिसमैच और वॉट एवर केस में। ठीक है, नाम या स्पेलिंग में एरर आ रहा है, डेथ सर्टिफिकेट में नहीं आया, अगर ट्रांसमिशन हुआ तो। अब ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ही हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, ये रेफ्यूजल हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब वो आरओएम में कंपनी नाम लिखने से मना कर देती, समझ में आया बेटा यहां तक। प्ले केस सिनारियो, एन अपील अगेंस्ट रेफ्यूजल। और सर्वेश बोल रहा है कि भाई कैसे रेफ्यूज किया, रुक एनसीएलटी चलो, समझ में आया। अब यहां पे देखो कि क्या है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, अब सबसेक्शन 4। अब 1 किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी की। 4 किसकी बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी की। तो मतलब क्या किया वो लोग ने, प्रोसेस को अलग अलग कर दिया कि प्राइवेट कंपनी अगर रेफ्यूज करती है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, पब्लिक कंपनी अगर रेफ्यूज करती है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स whether in pursuance of any of the power of the company under its articles or otherwise refuses to register। अब इतना ही पढ़ो, if a private company limited by share refuses to register the transfer or transmission by operation of law, ये दोनों हमने देख लिया। तो if the private company refuses to transfer या register the transmission of shares by operation of law to any securities or interest of a member, interest मतलब क्या हो गया बेटा, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल रहेगा तो उसका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, it shall within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company send notice of the refusal to the transfer or and the transferee। और क्यों ऐसा और, एसटीडी कौन दे सकता है, एनीवन। तो नोटिस भी किसको भेजना है,
एज द केस में बी, ट्रांसफरर भेजा है तो ट्रांसफरर को नोटिस दे, ट्रांसफरी ने भेजा है तो ट्रांसफरी को नोटिस दे, एंड नोटिस में क्या लिखेगा, रीजंस फॉर रेफ्यूजल. तो ध्वनि हैज टू राइट. ऑलराइट, तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं पसंद आई तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू गिव रीजंस फॉर रेफ्यूजल. तो मतलब कंपनी पे सबसे पहले क्या किया भाई, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो एक्सेप्ट कर रहे. अगर रेफ्यूज कर रहा है तो रीजन दे, क्यों रेफ्यूज कर रहा है. ऑलराइट, एंड रीजन देगा भी तो कितने दिन में देगा, 30 डेज. अब वो ट्रांसफर हो, ट्रांसमिशन हो, ट्रांसफरर हो, ट्रांसफरी हो, बिकॉज एनीवन कैन अप्लाई. बराबर है, जिसने अप्लाई किया, जैसे आपको मिला एसटीडी, एसटीडी नहीं, हाँ एसटीडी SH4, उसके हाउ मेनी डेज के अंदर, उसके हाउ मेनी डेज के अंदर, विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, नोटिस ऑफ रेफ्यूजल देना है. ऑलराइट, तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरी या एनी पर्सन हु इज गिविंग इंटीमेशन, क्योंकि ट्रांसमिशन में आप अप्लाई नहीं करते हो, आप क्या देते हो, इंटीमेशन देते हो. ठीक है. अब 58(1) एंड 58(2) बराबर है. अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं ये पूरा प्रोसेस करूं तो पर्सन कंपनी को क्या देता है, SH4. या तो ट्रांसमिशन देगा ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन देगा ट्रांसमिशन का, बराबर है. किसको देगा, कंपनी को. कंपनी को क्या करना है, स्टेप नंबर 2, विद इन 30 डेज रेफ्यूज कर रही है तो गिव सेंड नोटिस ऑफ रीजंस फॉर रेफ्यूजल. समझ में आ रहा है. इफ द कंपनी इज रेफ्यूजिंग इट विल सेंड द पर्सन क्या, अ नोटिस फॉर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर रेफ्यूजल विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. समझ में आ रहा है. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. पर्सन क्या करेगा, अपील टू कितना, NCLT विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस ऑफ रेफ्यूजल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है. अब तो पहले आप SH4 भरोगे. अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, the transferee may appeal to the tribunal against the refusal within a period of 30 days from the date of receipt of notice, or in case no notice has been sent by a company, within a period of 60 days from the date of which the instrument of transmission, instrument of transfer or the intimation of transmission as the case may be was delivered to the company. अभी ध्यान से एक बात सुनो, यहाँ पे कोई चीज रियलाइज या क्लिक करने की बात है. नोटिस आ गई तो विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. ऑलराइट, नोटिस नहीं आई तो विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम वेयर, वो तो लिखा हुआ है इधर. हमने जिस दिन कंपनी को बोला, कंपनी के पास कितना दिन है, क्लिक हुआ कि नहीं, क्या क्लिक हुआ, कुछ क्लिक हुआ कि नहीं, लेडेस हुआ, क्या क्लिक हुआ, आज अप्लाई किया कल आ जाऊं, आप बोला विद इन 60 डेज. ऑलराइट, ध्वनि को आज भेज दिया एप्लीकेशन, कल आ गए फाइल करने, चलो NCLT. सही ना, यही रीडिंग हुई ना. हाँ तो विद इन 60 डेज ना, तो कल आया तो विद इन 60 डेज हुआ कि नहीं हुआ, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी. यहां पे लोग ने मस्ती किया हुआ है, मस्ती किया हुआ है मतलब इजी कर सकते थे, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन किया हुआ है. ऑलराइट, ध्वनि को भेजा, इंटीमेशन हो गई आज,
अरे हुई कि नहीं हुई? डिलीवर हो गई, कल आ गया केस लेके, कम ऑन एनसीएलटी आ जाओ। अरे दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ, 60 डेज में ही फाइल करना है ना। समझा मेरा क्वेश्चन? समझा? ठीक है, देखो नोटिस आ गया ठीक है, नोटिस नहीं आया तो वही बोल रहा हूं ना, नेक्स्ट डे नोटिस नहीं आया, चलो एनसीएलटी, आई एम विद इन द टाइम। क्या 30-30? तुमको 30 डेज रुकना पड़ेगा। आया समझ में? जली ट्यूबलाइट, क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया तो घूमना नहीं है उधर, क्योंकि कंपनी को टाइम दिया हुआ है 30 डेज का। तो ऐसा लिख देना चाहिए ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज यू हैव मोर 30 डेज टू फाइल द अपील। नहीं, उन्होंने कहा 60 डेज। 60 डेज कहां से? डेट ऑफ इंटीमेशन से। बट डेट ऑफ इंटीमेशन से 30 डेज तो कंपनी के पास ऑलरेडी है, तो यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज। उससे पहले तुम केस फाइल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? द ट्रांसफरी में नॉट अप्लाई टू एनसीएलटी। नोटिस आया विद इन 30 डेज, तो टेक्निकली 30 डेज दोनों जगह पर है। समझ में आया? टेक्निकली 30 डेज तो दोनों जगह पर है, नोटिस आने से भी विद इन 30 डेज, और नोटिस नहीं आया तो वैसे भी 30 डेज रुक के ही आपको 30 डेज के अंदर फाइल करना है। समझ में आ रहा है? बट लिखना कैसा है? ऐसा। हाँ, तो मार्क्स इसके ही मिलते हैं बेटा। ऑलराइट, मार्क्स आपको इसके ही मिलते हैं, आपको स्टाइल ये लिखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉल्विंग एमसीक्यू या कुछ ऐसा सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू नो कि सर 30 डेज दोनों केस में। नोटिस आया तो 30 डेज फ्रॉम नोटिस, नोटिस नहीं आया तो एनीवे 1 मंथ रुक के वहां से हमको 30 डेज काउंट करना है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ऑलराइट, तो मैंने ये पूरा एक मास्टर से ही बना लिया है। अपील टू एनसीएलटी विद इन हाउ मेनी? 30 डेज ऑफ नोटिस, एंड द कंपनी में एक्सेप्ट, अगेन सेम एनसीएलटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट किया, ऑर्डर पास हुआ तो 10 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का डिटेल्स रजिस्टर में डालना पड़ेगा एंड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। मजे की बात यह है, पब्लिक कंपनी, ये क्या था? प्राइवेट कंपनी के लिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पब्लिक कंपनी के लिए इट इज सेम 60 डेज, बस इतना ही डिफरेंस है। इट इज एग्जैक्टली सेम, द प्रोविजंस आर रिपीटेड बट विद व्हाट? 60 डेज। वही सेक्शन में ये नहीं लिखा प्राइवेट के लिए 30, पब्लिक के लिए 60, अलग से फिर से लिखा ये प्रोसेस और बोला इन केस, बिकॉज दो अलग अलग सबसेक्शन है ना बेटा। मैं बोला ना, प्राइवेट पब्लिक, रेफ्यूजेस इंटीमेशन डिलीवर्ड ट्रांसफरी में विद इन 60 डेज। तुमको चाहिए था तो तुम एक में ही लिख सकते थे, डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है बेटा। पब्लिक कंपनी को टाइम ज्यादा दिया हुआ, बिकॉज पब्लिक इज इंटरेस्टेड, साइज क्वांटम आपका बड़ा रहता है, पब्लिक कंपनी को काम धंधा भी ज़्यादा रहता है। ऑलराइट, तो उनको टाइम ज़्यादा दिया है एंड प्राइवेट को कम दिया है। वैसे भी तुम्हारे लिमिटेड मेंबर्स है, उसमें भी तुमको नहीं मालूम किसका नाम क्या किधर है, तो फिर कैसा चलेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? पब्लिक में तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी देयर, ठीक है, प्राइवेट के अंदर कम रहता है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? ये द सेम, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, देखो ना सेम है वो। इट इज कॉपी पेस्टेड, हैंड राइटिंग इज सेम, एक वर्ड भी मैंने वो नहीं लिखा, देखो ना, मिरर इमेजेस है, खाली काटा इधर और 60 लिखा, रब भी नहीं किया। मेहनत की बात नहीं है, तुमको रियलाइज हो कि यहाँ पे 60 है, ठीक है, मेहनत का नहीं है, कि वो तुमको ग्राफिकली याद रहे, प्राइवेट में 30, पब्लिक में 60, तो 1 महीना रुकना है, उसके बाद आपको कितना मिलेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस, ठीक है, बोल बेटा।
हाँ बट यहाँ पे ना विदाउट प्रेजुडिस द सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यहाँ पे लोग ने पब्लिक कंपनी का बात करना चालू कर दिया, ठीक है। All right, write down 58 refusal of registration and appeal to NCLT against such approval. एक मिनट एक मिनट एक मिनट। All right. All right. Again another 58 पे देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। Mr. Nilesh has transferred 1000 equity shares of Perfect Vision Private Limited to his sister Miss Mukta. All right. The company did not register the transfer of shares and also did not send a notice of refusal to Mr. Nilesh or Miss Mukta within the prescribed period. Discuss as per the provision of the Companies Act whether aggrieved party has any right or rights against the company. Yes? क्या राइट्स है? एनसीएलटी के पास जाके रोने का? हाँ हाँ ठीक है, रोने का, यस रोने का, पर तो तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पहले। सेक्शन 58 सबसे पहले कौन सा वाला लगाओगे, प्राइवेट या पब्लिक? इट इज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बराबर है। तो सबसे पहले कंपनी हैज टू विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मच, हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ रेफ्यूजल गिविंग रीजंस फॉर सच। पहले तो एक्सेप्ट करना है, वो तो अलग चीज है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो नोटिस भेजना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? देखो एक्सेप्ट किया तो गेम ओवर, चैप्टर खत्म, मतलब वो स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वही 30 डेज के अंदर तुमको क्या करना है, नोटिस भेजना है भाई। विद इन 1 मंथ या तो एक्सेप्ट कर और या तो रेफ्यूज कर रहा है तो नोटिस भेज, एंड क्या करेगा, रीजंस फॉर सच रेफ्यूजल। द अग्रीव पार्टी कौन है, आइदर मिस्टर नीलेश और मिस मुक्ता कैन फाइल, क्या कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? सिक्सटी या 30? 30। ध्यान दिया कर, वो पब्लिक में था। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, क्या कंफ्यूजन है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, बेयर एक्ट के हिसाब से, हाँ मुझे लगा तू ये 60 डेज की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो बराबर है, वो बराबर है, वो बराबर है, बराबर। ठीक है, मैं अप्लाई फ्रॉम विद इन, मैं अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 60 डेज।
60 days from date of the origin delivery of such instrument. ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी बेटा, डेट ऑफ डिलीवरी, ये वाला 60 की बात नहीं कर रहा है, वो ये जो मैंने यहाँ स्प्लिट किया ना 30-30, जो बैर एक्ट का लैंग्वेज था वैसा, ये वही मीनिंग है। मैंने उसको 60 को ब्रेक किया कि 60 में नोटिस भेजना है, 60 में नोटिस ऑफ रेफ्यूजल से आपको टेक्निकली 30 डेज मिल जाएगा, बराबर है। ओरिजिनल आपने देखा तो आपके पास क्या है, 60 डेज। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक।